Good afternoon, students. Today we are going to start our chapter 12 in history. Chapter name is New Empires and Kingdoms. We have already studied about the Mauryans, and those were succeeded by a number of natives and foreign rulers. Mauryan empire को बाद में काफ़ी सारे foreign rulers ने और काफ़ी सारे natives ने जो है सक्सीड किया था. ऑफ देम सम वर इम्पोर्टेंट, बट उनमें से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एम्पायर्स थे. बट आफ्टर द फॉल ऑफ द कुशाणा इन द नॉर्थ एंड द सातवाहना इन द डेक्कन, द कंट्री ब्रोक अप इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स. जब कुशाणास का नॉर्थ में और सातवाहना का डेक्कन एरिया में जो है फॉल स्टार्ट हो जाता है, तो जो हमारा कंट्री है वो काफ़ी सारे छोटे छोटे स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाता है. दीज स्टेट्स वर ऑलवेज एट वॉर विद वन अनदर, और ये सारे एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं. बट इन द बिगिनिंग ऑफ द 4th century AD, these small kingdom began to decline and Magad again become powerful under the Gupta dynasty. और दोबारा से जो है मगध पावरफुल हो जाता है अंडर द गुप्ता डायनेस्टी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द गुप्ता डायनेस्टी. This dynasty controlled the destiny of most of the northern India for more than 200 years. Although it was not as vast as the Mauryan Empire, but it left a deep cultural impact not only on the Indian subcontinent but also on the adjacent Asian countries. ये मौर्यन एम्पायर जितना बड़ा नहीं था मगध एम्पायर, बट फिर भी इसने बहुत इम्पैक्ट डाला अपने आसपास के कंट्रीज पर. प्रयागा, उज्जैन एंड पाटलिपुत्र वर द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द गुप्ता रूलर्स. Under the Gupta rule, India made immense progress in the almost every field. That's why their glorious rule is known as the golden age of ancient Indian history. इसीलिए इंडियन हिस्ट्री की एंशियंट एज जो है वो गुप्ता पीरियड को बोला जाता है. The Gupta dynasty was founded by Maharaja Sri Gupta. He was followed by his son Ghatotkacha Gupta. After Ghatotkacha, Chandragupta first came to the throne. The great rulers of this dynasty were Chandragupta I, Samudragupta, and Chandragupta II. Let us study about them in detail. Now we will study about the Chandragupta I. Chandragupta I was the first ruler of Gupta dynasty to adopt the grand title of महाराज धीराज. अगर आपसे पूछा जाए महाराज धीराज का जो टाइटल है वो किसे मिला था, तो गुप्त डायनेस्टी में चंद्रगुप्त फर्स्ट को महाराज धीराज का टाइटल मिला था. हिज फादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन्ड सिंपली एज महाराज. चंद्रगुप्त मैरिड अ लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी. चंद्रगुप्त की जो शादी होती है वो लिच्छवी प्रिंसेस के साथ होती है जिसका नाम है. This was very advantageous to him. He got पाटलिपुत्र as part of his dowry. उसे दहेज में पाटलिपुत्र मिला था. He conquered a number of kingdoms with the support of लिच्छवीज. उसने सिर्फ लिच्छवीज के सपोर्ट से बहुत सारे किंगडम्स को कन्क्योर किया, मतलब जीत लिया. He expanded his empire from Magad to प्रयागा. समुद्रगुप्त AD 335 to 375. Chandragupta I was succeeded by his son Samudragupta. He is considered to be the greatest ruler of their dynasty. His empire extended from the river Brahmaputra in the east to the river Yamuna and Chambal in the west, and from the Himalayas in the north of the river Narmada. In the south, it is said that Samudragupta defeated 9 kings of north and 12 kings in the south. His most important military exploits was his Deccan campaign, in which he covered a long distance of 3000 miles through dense forest. This is why he is called Indian Napoleon. उसने ना बहुत सारे किंगडम्स को जो है वो जीत लिया था, अपना एम्पायर जो है उसने बहुत बड़ा कर लिया था. That's why he is called Indian Napoleon. A pillar inscription at Allahabad gives valuable information of his region. It was composed by his court poet हरि सेना. उसका court poet हरि सेना था. उसने एक inscription इलाहाबाद में लिखा हुआ था, इलाहाबाद में in Sanskrit. The pillar also has an edict of Ashoka on one side. The inscription is
वन ऑफ द स्पेशल काइंड दैट इज नोन एज ए प्रशस्ति। प्रशस्ति एक वर्ड है जिसका जो मीनिंग होता है प्रशंसा, किसी को प्रेज करना। वाइल प्रशस्तिज were composed for some of the rulers you have read about in chapter 11, such as Gautami Putra Shri Satkarni. They become for more important from the time of Guptas. कुछ और रूलर्स थे जिनके लिए ये प्रशस्तिज लिखी गई थी, तो उनमें से गौतमी पुत्र सातकर्णी थे. In the Prasasti, Harisena describe 4 different kinds of rulers and respective policies of Samudragupta for dealing with them. वो उस टाइम 4 अलग अलग तरीके के राजाओं का जो है इसमें वर्णन करता है और बताता है कि जो समुद्रगुप्त है वो सब तरीके के लोगों के साथ किस तरीके से उनको डील करता था, किस तरीके से उनके साथ बिहेव करता था. नाउ व्हाट डू यू नो, what is prasasti? Prasasti is a Sanskrit word that means in praise. संस्कृत प्रशस्ति का मीनिंग होता है इन प्रेज, किसी की प्रशंसा में, किसी की तारीफ करना. इट वॉज यूज्ड स्पेशली इन द प्रेज ऑफ किंग्स. द प्रशस्ति डिस्क्राइब द किंग एज इक्वल टू द गॉड. प्रशस्ति में किंग को भगवान की तरह दिखाया जाता था. ऑल्दो प्रशस्तिज वर कंपोज्ड फॉर अर्लियर किंग्स ऑल्सो, बट दे बिगन टू यूज्ड वाइडली ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. प्रशस्तिज पहले भी लिखी जाती थी बट वाइडली इनका यूज जो है वो गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हुआ था. In the Prasastis, Harisena described 4 different kinds of rulers and the respective policies of Samudragupta for dealing with them. They are as under. 4 तरीके के अलग अलग राजाओं के साथ वो चारों अलग अलग तरीके से डील करता था. नंबर 1 इज आर्यव्रता. Samudragupta uprooted the rulers of Aryavarta, presently major part of Bihar and Uttar Pradesh. जो आर्यावर्त बोला गया है इस टाइम का जो बिहार का और उत्तर प्रदेश का पार्ट है उसको बोलता है आर्यावर्त. हु वर 9 इन नंबर. 9 ऐसे राजा थे जो आर्यावर्त थे. देयर किंगडम वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर एंड दे वर रूल्ड डायरेक्टली बाय हिम. आर्यावर्त के जितने भी किंगडम्स थे वो पार्ट हो गए थे किसके, समुद्रगुप्त के एम्पायर के, और उन पे डायरेक्ट जो है समुद्रगुप्त का रूल हुआ करता था. नेक्स्ट वन इज दक्षिणापथ. समुद्रगुप्त defeated 12 rulers of the दक्षिणा डेक्कन एंड फॉर साउथ दक्षिणापथ. ये 12 रूलर्स थे जो दक्षिणापथ के थे. These were not annexed. The rulers only had to pay an annual tribute and accept Samudragupta as their overlord. They surrendered to Samudragupta after being defeated and then he allowed them to rule again. उनको ये जो 12 राजा थे जो इनके एम्पायर को समुद्रगुप्त ने जीत तो लिया था बट इन लोगों को वापस अपने एम्पायर पर रूल करने के लिए बोल दिया गया था. वो अपने एम्पायर पर वापस खुद से रूल कर रहे थे. फ्रंटियर स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया. दीज इंक्लूड सम हिमालयन किंगडम of Assam, Nepal, coastal Bengal, the kingdoms of Ganga Delta, and the tribal republics of North West. They accepted his power, followed his orders, brought tribute, and attained his court. ये जो रूलर्स थे उन्होंने उनकी पावर जो है एक्सेप्ट कर ली थी, उनके रूल्स को फॉलो करते थे, लेकिन फिर भी इन लोगों के पास जो है अपने राज्य में खुद से राज कर रहे थे. बट इनका जो ओवरलॉर्ड था वो समुद्रगुप्त था. नॉर्थ वेस्टर्न किंगडम्स एंड श्रीलंका. दिस इंक्लूड द रूलर्स ऑफ आउटलाइंग एरिया हु वर परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ कुशाना एंड साका एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका. These rulers submitted to Samudragupta, paid tribute and offered daughters in marriage. इन रूलर्स को अपने राज्य पे रूल करने के लिए क्या ऑफर करना होता था, अपनी बेटियों का विवाह जो है वो समुद्रगुप्त के साथ करना होता था या फिर उनको कुछ गिफ्ट वगैरह करते रहते थे. समुद्रगुप्त वाज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो ए ग्रेट म्यूजिशियन एंड अ टैलेंटेड पोइट. वो एक ग्रेट वॉरियर ही नहीं था, म्यूजिशियन भी था, टैलेंटेड पोइट भी था. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द वीणा. Many of his coins showed him playing on the veena. He was also a great patron and lover of art and literature. वो एक great patron भी था और lover भी था art and literature का. Though he was a follower of Hinduism, but he was equally tolerant towards other religions. He had exceptional qualities of head and heart.
उसके पास अच्छा हेड भी था और अच्छा हार्ट भी था, वो उसका माइंड भी बहुत शार्प था, और उसका जो हार्ट था, उसका जो दिल था, वो भी बहुत अच्छा था। This brought economic growth and prosperity in his kingdom. He also maintained friendly relation with the Deccan and southern kingdoms. He shifted his capital to Ujjain. उसने अपनी कैपिटल को भी उज्जैन में शिफ्ट कर लिया था। चंद्रगुप्त सेकंड इज द स्पेशली remembered for his patronage to art and literature. चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में था ये, बट अब हम चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये गलती से हमने उधर का पढ़ लिया है, ये पहले हम चंद्रगुप्त सेकंड वाली हेडिंग पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त वाज सक्सेटेड बाय हिज सन। चंद्रगुप्त का जो समुद्रगुप्त था, उसका जो बेटा था वो चंद्रगुप्त सेकंड था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन रूलर ऑफ इंडिया, took the title of Vikramaditya. He defeated the last of the Saka and took control over the three great seaports on the western coast. These were the outlets of vast overseas trade. उसने जो है 3 सी पोर्ट्स पे जो है अपना जो है वो कंट्रोल कर लिया था, और ये क्या थे, वास्ट ओवरसीज ट्रेड के एक तरीके से सेंटर थे। तो इस 3 सी पोर्ट्स पे उसका कंट्रोल हुआ, उससे क्या फ़र्क पड़ा, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी मिली। ही ऑल्सो मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द डेक्कन एंड साउथर्न किंगडम्स। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू उज्जैन। अगर कैपिटल की बात आए तो उज्जैन में शिफ्ट की थी चंद्रगुप्त सेकंड ने। चंद्रगुप्त सेकंड इज द स्पेशली रिमेंबर्ड फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। चंद्रगुप्त सेकंड क्यों स्पेशली रिमेंबर किया जाता है? अपने आर्ट एंड लिटरेचर के लिए। ही encouraged learned men in his court. The नवरत्न of 9 gems lived in his court. उसके दरबार में नवरत्न रहते थे, 9 gems रहते थे। The astronomer, the Chinese traveler Fashian, who visited India during this time, was written a detailed account of his kingdom. हमने कल की क्लास में पढ़ा था फाहियान के बारे में। वो जो है वो इसी के टाइम में जो है वो इंडिया को विजिट करता है। Harshvardhana. We know about Harsh reason from many literary sources. The first is the Harshcharita, which is a biography of Harsha. हमें हर्ष के बारे में कई लिटरेरी सोर्सेज से पता चलता है। इसमें हर्ष की बायोग्राफी है, दैट इज हर्षचरिता। इट वॉज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज बाय हिज कोर्ट पोएट बाणभट्टा। ये बाणभट्ट ने लिखी थी, कोर्ट पोएट। द बायोग्राफी गिव्स अ genealogy of हर्ष एंड एंड्स विद हिज बिकमिंग द किंग। The other source is a detailed account of Chinese Buddhist traveler. दूसरा सोर्स जो है एक चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर विन सांग है, जो इसके बारे में बताता है। हु वॉज एन ऑनर्ड गेस्ट इन द कोर्ट ऑफ हर्ष। हर्षवर्धन के कोर्ट के अंदर उसको एक ऑनर्ड गेस्ट के रूप में जगह मिली थी। बोथ ऑफ देम एक्सट्रीमली प्रेज्ड हर्षा। हर्षा वाज नॉट द ओल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर बट बिकमिंग किंग ऑफ थानेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। हर्ष जो है अपने फादर का बड़ा बेटा नहीं था, लेकिन जब उसके फादर की और उसके एल्डर ब्रदर की डेथ हो जाती है तो वो जो है वहाँ का किंग बनता है। हिज ब्रदर इन लॉ वाज द रूलर ऑफ कन्नौज एंड ही वॉज किल्ड बाई रूलर ऑफ बंगाल। उसका जो ब्रदर इन लॉ था वो कन्नौज का राजा था, और वो किसके द्वारा मारा गया था? बंगाल के रूलर के द्वारा। हर्ष टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज। ही कनकर्ड मगधा एंड बंगाल। उसने कन्नौज किंगडम पे भी अपना पूरा राज कर लिया। उसने मगध को भी जीता और बंगाल को भी जीता। बाई AD 612 हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम हिमालय इन द नॉर्थ टू द रिवर नर्मदा इन द साउथ। जो है उसका है जो पूरा का पूरा एम्पायर है वो नॉर्थ में हिमालय से लेके नर्मदा रिवर तक जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। सो बेटा आज की क्लास में इतना ही। बाकी का जो हमारा पार्ट है वो हम कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा थर्सडे को, तब हम इसको देखेंगे।